Ladies and gentlemen, a very good evening and welcome to a brand new episode of The Nation Wants to Know, and I'm Deepthi Sachdeva. The nation wants to know now only one thing: what happened on June the 4th. Remember, we are just days away now from that entire huge big date where you will know that who wins the 2024 Mahabharat. But before that, there is an important and a last lap of the election that we are looking at on June the 1st. Again, just hours before the campaigning closes, Times Now has been in Banaras for the last many days, speaking to a lot of people, speaking to the Adi Abadi, the Mahila voters, speaking to people on the streets, speaking to a lot of people here on the ghats, the mallas. All of them, remember, are important vote banks for any political party. But when you talk of the eastern Uttar Pradesh or the Purvanchal belt, this is where a lot of MBC, EBC conversation gets extremely strategic to look at. And this is why parties like the SP, the Congress, who form the INDA alliance, are hoping that they will be able to contain the BJP here. Could that actually happen? Now, Banaras, the seat that we've been reporting from, actually is seeing no contest. Many say it's a foregone conclusion that you will see Narendra Modi not just winning the constituency, but the BJP bettering its margin. What really does that mean? I'll tell you some figures. In 2014, Narendra Modi, who gets selected from Banaras for the first time as an MP, gets a 56% vote share. Then in 2019, when he's fighting this battle again from Banaras, his vote share goes up by 7%. And then he picks up a 63% vote. Now this time, a lot of BJP insiders, BJP netas that we've spoken to are looking at breaking the record of what happened in 1967. When the late former Prime Minister Chandrasekhar, remember, won this constituency. The BJP wants to beat that record, and that is why there is this entire figure of a 66.2% vote share that the BJP is wanting to breach. Is that really possible? Is that doable? Will the Prime Minister be able to create that record, or will the INDA alliance be able to stop the BJP in its tracks? Again, a lot of questions, and we have the best panel joining us here on the Assi Ghat, from where we are bringing to you this entire coverage. Let me quickly take a moment to introduce all the gentlemen joining us. We have Dr. Kaushal Kishore Mishra ji, who represents the BJP with us. Man Shravan Das ji, who's a Dharm Guru here, also standing, he's smiling. मुस्कुरा रहे हैं आप? गर्मी में मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात लगती है. On my left, in fact, is Vivek Salis, who's been kind enough to join us. He represents the Samajwadi Party here. We also have Kamlakar Tripathi ji, who's representing the Congress on the panel. And I also have Jaiprakash Sharma ji, who's a political analyst. He completes our panel. And without wasting much time, we'll quickly ask the BJP, क्या contest है सर? बनारस में क्या contest आप देख रहे हैं? बनारस में कोई contest नहीं है. बनारस में contest का आपने आंकड़ा बताया, मैं आंकड़े से ही समझा देना चाहता हूँ. 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे. उनको टोटल बनारस में जो टोटल वोट पड़ा था वो 57 पॉइंट समथिंग था, और उनको लगभग 5 लाख से ऊपर वोट मिले थे. वो 3 लाख वोट से जीते थे पहला टाइम. 2019 में फिर नरेंद्र मोदी लड़े. वोट परसेंटेज ऑफ वोट 1% गिर गया, वो 56 पॉइंट समथिंग हो गया. लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट मिला 7 लाख समथिंग, और उनकी जीत का मार्जिन बढ़ गया करीब 5 लाख से ऊपर. 2024 में हम अंदाजा करते हैं कि 57 के ऊपर या 60 तक वोट पड़ेगा परसेंटेज. और यदि 60% वोट बनारस में पड़ता है या 62% वोट बनारस में पड़ता है, तो नरेंद्र मोदी को कुल वोट मिल गए, काउंटेड है 10 लाख, 9 लाख और 10 लाख के बीच में. अच्छा, आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है कि 9 से 10 लाख का वोट आ जाएगा. है कि चूंकि नरेंद्र मोदी ने बनारस को सजाया है, नरेंद्र मोदी ने बनारस को अच्छी तरह संभाला है, नरेंद्र मोदी ने बनारस को दिया है, और अगर नरेंद्र मोदी ने बनारस को दिया है, बनारसी खुश हैं उनके विकास से, तो बनारसियों को नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोट से पुरस्कृत करना चाहिए. ये बनारस के लोगों की धारणा है, और मुझे लगता है कि बनारस इस बार नरेंद्र मोदी को पुरस्कृत करने जा रहा है. इसमें कोई दो संशय नहीं. ठीक है, तो आपका ये कहना है कि कोई टक्कर तो है ही नहीं, कोई चुनौती नहीं है. विवेक, ऐसे में आई मीन द ओनली ऑब्वियस क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इट दैट द एसपी एंड द कांग्रेस टुगेदर वांट टू अचीव. नाउ यू कुड हैव गिवन दिस सीट टू द एसपी, बट यू डिसाइडेड टू गिव इट टू द कांग्रेस. नाउ अजय राय जी यहाँ से लड़ रहे हैं. अजय राय जी नंबर 3 पे आते हैं.
is he even a contest to a Narendra Modi, या you've actually also ensured कि यार कुछ नहीं होने वाला है? First of all, very, very good evening to all of you and to the viewers as well. It's a proud moment for the Samajwadi Party and personally to me that we are standing on the bank of Ma Ganga. So, Jai Ma Ganga and in Banaras, Har Har Mahadev, first of all, to all the viewers and all the panelists. You know, you talked about Deepti that we are all looking forward to 4th of June. And it's going to be very exciting. As you said, it's a matter of few days. But as far as the Samajwadi Party, not only in Uttar Pradesh, and Purvanchal has always been a stronghold for the Samajwadi Party. Even if you see the last contested 2022 elections, where the Samajwadi performed brilliantly well in Purvanchal. Now the wave that has started from the western side of Uttar Pradesh has reached its peak in Purvanchal. As far as Varanasi is concerned, today we are standing on Assi Ghat. This is called the Assi Ghat. You see what the Honorable Prime Minister Narendra Modi promised to Varanasi, that the Ganges would be clean. It would be absolutely clean, क्योंकि उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने हमें गोद लिया, माँ गंगा ने हमें बुलाया, मैं इसकी सफाई करूंगा. He made a department of Namami Ganga where thousands of crores have gone waste. 40,000 crores. See, 40,000 crores. See the Assi Ghat Nala. What is there? Not even a sewage plant in the Assi Ghat Nala. You seeing this you know, Assi Ghat is I'll another. tell you a simple data in Varanasi. 16.5 crore liters of sewage water is drained out from the city of Varanasi every day. And 10.6 crore liters of sewage water is untreated, that is going in Mother Ganges. That is the achievement of the Honorable Prime Minister. He could not fulfill his moment, what he said. कौशल जी, हम चेक करेंगे, फैक्ट चेक करना जरूरी है, because this is also the age of a lot of fake news. Remember, that does go out, but because the SP has raised a very serious charge, the BJP has said no, nothing doing. That is not true. So we'll go in for a fact check, but let's push that conversation a little further. कमलाकर त्रिपाठी जी, अब आप मुझे ये बताइए कि अमित शाह ने कई बार ये बोला है कि 5वें फेज के बाद ही भाजपा 310 क्रॉस कर चुकी है. उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को मुश्किल से 4 आ जाए तो गनीमत है, और कांग्रेस तो 40 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी. अब भाजपा तो बात करती है रोज नए रिकॉर्ड बनाने की, लेकिन कांग्रेस को क्या असली में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 19 का आंकड़ा भी आप टच नहीं कर पाओ? बनारस का नारा है इस बार, मोदी जी हाफ, बीजेपी साफ. और अमित शाह जी के लिए मोदी जी हाफ और बीजेपी साफ. हाँ. और अमित शाह जी के लिए कहना चाहूंगा कि हमें मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है. There is an old saying in English that you can fool some people all the time, you can fool some people all the people for some time, but you cannot fool all the people all the time. मोदी जी has been exposed. जो आदमी कहता है कि माँ गंगा का मैं पुत्र हूँ और मुझे गोद ले लिया है, वो आदमी 250 रुपए लीटर में यहाँ गंगा माँ का पानी बेचा जा रहा है. कौन अपनी माँ को बेचता है इस तरह से? बाबा विश्वनाथ के यहाँ सुगम दर्शन के नाम पे 300 रुपए 500 रुपए लिए जा रहे हैं. बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अंदर जो है वो शादियां हो रही थी, बीच में शादियां रुकवानी पड़ी क्योंकि वहाँ प्याज भी बन रहा था, और बाबा विश्वनाथ के यहाँ प्याज सर्वथा वर्जित है. अच्छा, आपने मान जी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बार ये ज्यादा आप लोगों पर हावी हो रहे हैं. आप फटाफट इनकी बातों का जवाब दे रहे हैं. एक बार रुकिएगा, मैं कांग्रेस को कुछ याद दिलाना चाहती हूँ. देखिए, आप अच्छा लगा कि आप धर्म को लेकर इतना टची हो गए हैं, बट ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर के नाम पर कुछ नहीं बोलती. राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जाते, अखिलेश जी नहीं जाते. तो सुनिए कमलाकर, रावण राम के भेष में ये स्थिति हो गई है. कालनेमी भी जो है वो हनुमान जी को भटकाने के लिए रामनामी ओढ़ करके राम नाम का पाठ कर रहा था ताकि वो संजीवनी नहीं ला सके. तो ये इस समय ये बनारस की जनता ये समझ चुकी है, उसका हित जो है वो जवाब दे देते हैं, उसके बाद आइएगा. किसान की बात कर रहे हैं कि मैं सबको लेके, दलितों पिछड़ों सबको लेके चलते हैं. आज तक कोई भी भारत सरकार में 70 साल रहे हैं, ये बता दें कि भारत सरकार ने किसी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया हो और इन्होंने सौंप दिया कि राज्य सरकार करे, और राज्य सरकार में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कोई परिभाषित किया हुआ. जहाँ पर तो माइनॉरिटी है वहाँ पर तो मेजॉरिटी की बात होती है, और इस तरह की बात करते हैं कि हम किसानों की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं. आज सबका साथ सबका विकास देने का कार्य कोई भी किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है.
प्रधानमंत्री आज तो प्राइम मिनिस्टर ने की है। सबका साथ सबको, आज जितने बार भी प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पर हजारों योजनाएं लेकर आए हैं और इनको सौगात के रूप में दिए हैं। अब ये अलग बात है कि उनको एक टच न करें और कह दें, आरोप लगा दें कि बेरोजगारी मुझे मिला है, ये अलग बात है। सिर्फ आरोप है, देश में बेरोजगारी है या नहीं? बेरोजगारी किस बात की बेरोजगारी की बात करते हैं? जो व्यक्ति यह कहते हैं कि 10,000 का मोबाइल लेके एक रिक्शा वाला चलता है यहाँ पे बनारस में या देश में, बेरोजगारी की बात करते हैं। किसी के पास अगर 10,000 का मोबाइल है तो देश में बेरोजगारी नहीं है, आपका तर्क है। बेरोजगारी है भाई। ठीक है, देखिए जनता समझदार है, जनता ये डिसाइड करेगी। बट जयप्रकाश जी, आपने सब वक्ताओं को सुना। अब देखिए, ऑब्वियसली कांग्रेस एसपी अपना साइड बोलेंगे, भाजपा अपना साइड बोलेगी, लेकिन जब जनता की रोजी रोटी की बात आती है, अब भाजपा चाहती है नए रिकॉर्ड्स बनाना, इंडिया अलायंस अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, क्योंकि अगर ये चुनाव ये लोग हार जाते हैं तो आपको भी पता है समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश शायद इनके हाथ से भी निकल जाए। तो किसके लिए ज्यादा चीजें स्टेक पर? देखिए, समाजवादी पार्टी खत्म होगी या कांग्रेस, ये तो समय बताएगा। हाँ। क्योंकि बीजेपी वालों ने एक ब्रांडिंग की है, मोदी मोदी मोदी, ताश के पत्ते का महल बना रहे यहाँ विकास है और या जिस नहीं है? तरह से मोदी जी का यहाँ पे ग्राफ गिरता चला जा रहा है, आपको बताऊं मैं, जिस तरह से मोदी जी का ग्राफ गिरता जा रहा है, आने वाले समय में बीजेपी खत्म हो जाएगी। और बगल में नाला बह रहा है, जिस तरह से इन्हीं लोगों के भरोसे भी बीजेपी है, मोदी जी को बदला नहीं है, इन्हीं के भरोसे मोदी जी आगे बोल रहे हैं। मिट्टी जहाँ की पारस है उसका नाम बनारस है। मोदी जी को ये लोग बलगला रहे, इनके रिपोर्ट के आधार पर मोदी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और जब सोच लीजिए, देश का प्रधानमंत्री समय समय पे झूठ बोल रहा है, तो उनके इस तरह के जो यहाँ कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बिल्कुल बोल झूठ रहे बोल रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं तमाम रोजगार यहाँ दिया जा रहा है, 3-4 सड़कों को बनवा के, सुनिए मैडम, क्या आप टूरिस्ट का फुटफॉल देख रहे हैं? आपको लगता है कि बनारस में इस तरह का एक इकोनॉमिक मैडम, डेवलपमेंट अभी बहुत भी जरूरी 10 है? साल में जो सबसे पहला काम था नालों को बंद करना, 1, 2, 3 नालों को छोड़ के अभी भी सारे नाले बह रहे हैं। चालाकी क्या है, ये रात में 12 बजे के बाद और भोर में 4 बजे के पहले बहा के बंद कर दिया जाता है। अभी भी तमाम नाले बह रहे हैं। गंगा पार क्रूज, वो एक नहर खुदवाई गई थी, पूरा जनता का एक अदना सा नाविक, एक अदना सा मल्लाह भी बोलता था कि ये बाढ़ के बाद ये पैसा जनता का फूक जाएगा, लेकिन इनको होश नहीं था। वही हुआ है, बाढ़ जैसे ही आई, आप खत्म हो गया। जयप्रकाश जी, कमलाकर जी, विवेक जी, आप तीनों भरपूर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए, अगर जनता बार बार किसी सरकार को चुन रही है, जनता बार बार अगर ये कहती है कि अब नरेंद्र मोदी में ही विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना आप लोगों में। या तो आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे, लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों का जो है, ये किसी भी तरीके से अभी तक कभी ऐसा हुआ कि वोट जिस दिन पड़े, वोटिंग कितना पड़ा वो 2 दिन 3 दिन बाद बताया जाता था। ये तो ईवीएम का और तमाम तरह का कौन सा गेम कर रहे हैं। अभी भी कल आपने सुना जौनपुर में, बिल्कुल जौनपुर में अभी एक ट्रक ईवीएम का पकड़ा गया है। ये सब चीज हुआ है, आप ये लोग तमाम चीजें हो रही गेम है। करके चुनाव जीतेंगे, ऑपोजिशन का अभी भी ये आरोप है। ये इनका, जब 4 जून के बाद ये लगा, जब ये जीत जाएंगे, लगे ना, जब ये जीत जाएंगे तब नहीं कहेंगे ईवीएम की बात है। रोने जब की ईवीएम है, गेम है, फला है, ढिकाना है। 1 तारीख को पता चले, 1 तारीख को शाम को जो वो एग्जिट पोल आएगा उसे पता चल जाएगा। उसके बाद एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये लोग चुनौती की बात मत करें। बनारस में ना 70% महिला मोदी के साथ है, बनारस में 70% युवा मोदी के साथ है। ये बाहर से आने के मोदी और महिलाओं की बात कर रहे हैं। यहाँ टाइल्स लगा, जो इंडी गठबंधन के लोग सन्यासियों को गोदौलिया चौराहे पर नंगा करके पीटते हैं, वो बनारस में जीतने की बात कर रहे हैं। वाह भाई वाह, लग रहे हैं दोनों साइड से। कमलाकर जी और जयप्रकाश जी, इससे पहले आप जवाब दें, we'll quickly hit a break, but nation continues to know what is going to happen. Remember, there are serious allegations being raised from all sides, but one must say that when you come in Banaras, you do realize there is a lot of support for the BJP. But is that again just limited to Banaras? We'll see that in the Purvanchal belt also. We are back on the other side. So you're watching Nation Wants to Know. We are live right now from the Assi Ghat in Banaras. Lot of
of chehal pehel, lot of footfall, and there is obviously a lot of anxiety. People are very very anxious to find out कि क्या होगा जून 4 को. विवेक जी, बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों ने, बहुत आरोप लगा दिए भाजपा पे, बट आपका क्या प्लान है? क्या अगर जैसे अमित शाह कहते हैं आप 4 सीटें निकाल लें तो मतलब गनीमत होगी? देखिए, अमित शाह तो 15 लाख को जुमला बताने वाले लोग, हाँ। बंगाल के चुनाव में 200 जीतने वाले लोग, हरियाणा के चुनाव में 70 सीटें जीतने वाले लोग, कर्नाटक में भारी बहुमत से सरकार आने वाले लोग, हाँ। हिमाचल प्रदेश को स्वीप करने वाले लोग, तो अमित शाह को सीरियसली लेता कौन है? आप जो उन्होंने बोला सब तो गलत हुआ। एसपी को आप कितना देते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हाँ। उत्तर प्रदेश में कम से कम 65 सीट जीत के आने वाला है। 65, 80 में से 80 65। में से 65। और भारतीय जनता पार्टी जो 2009 में थी, 2004 में थी, 10 सीटों पे आके खड़ी हो जाए। बट कमलाकर जी, ऐसा कैसे हो जाएगा कि जो पार्टी इस समय 60+ पर है, उसको आप लोग कह रहे हैं कि वो एकदम गिर जाएगी और आप लोगों को 60-65 आएगा? तेलंगाना में 119 में से 111 सीट पे केसीआर थे और हमारी सरकार बन गई। हाँ। ये कोई, जब जनता पलटती है, जनता बदलने लगती है, जनता के सामने ये एक्सपोज हो चुके। राह में रहजन मिला, रहबर के भेष में पहचान दे गया है मुझे लूटने के बाद। हाँ। बनारस की जनता ठगी महसूस कर रही है। यहाँ महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। हाँ। बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ इस कंस्टिट्यूंसी में मोदी जी की रेप होता है और उन रेपिस्टों को 1 महीने तक स्टार प्रचारक बना करके मध्य प्रदेश भेजा जाता है। क्या ये बनारस की जनता भूल जाएगी? ब्रिजभूषण शरण सिंह को पूर्वांचल भूल जाएगा, जहां उनके प्रॉक्सी लड़के को आप टिकट देते हैं और आज उसी लड़के ने सत्ता के मन में 3 लोगों की जान ले ली। कौशल जी जवाब दीजिए अब इसका। उनको आपने जवाब दिया बीएचयू का। बीएचयू में किसी महिला के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार है, उसका हम विरोध करते हैं, वो निगृहित है। लेकिन वही जो लोग जिन लोगों का नाम उसमें था, सब जेल में सड़ रहे हैं। एक जेल में सड़ रहे हैं, उसको पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने योगी की कार्रवाई की, उनके घर बुलडोजर गया है, उनके घर बुलडोजर को कुछ पता नहीं है, उनके घर बुलडोजर गया। अब बात आई है दूसरे पर, सुन लीजिए शिवानी जी, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट आएगी, 65 सीट आएगी। मेरा निवेदन सुनिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव चुनाव हारने जा रहे हैं। अपने ही सीट से और 80 सीटें 80 के योगी के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर 80 सीटें उत्तर प्रदेश, और ये लोग चिल्लाते रह जाए। नेता यहाँ पे आके बनारस में मोदी जी के लिए, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता हैं, उनके लिए यहाँ पे खड़े होकर अरुण गोविल तमाम लोग घूम रहे हैं। मोदी के लिए गली अरुण गोविल और ये लोग मोदी जी के बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि वो कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल चाइल्ड ही नहीं है। हमें तो मेरी माँ के जाने के बाद अवतरित हुए हैं, भगवान ने भेज दिया है। आपको लगता है ये प्रधानमंत्री जो कभी मिला ही नहीं। राष्ट्र के हित में यदि सब लोग यहाँ आ रहे हैं तो इससे इनको पीड़ा किस बात की होनी चाहिए? आपके पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है। मछलियों को देखकर दरिया किनारे नदी के घड़ियाल सब आंसू बहाने आ गए और रोटियों के खून से शाही गली और सब तहजीब का महसूस करने आ गए। बनारस मुशायरा नहीं है, ये मुशायरा नहीं है, चुनाव है। मुशायरा करने वाले लोग हवा हो जाएंगे। मुशायरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। तो ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? हाँ या ना? ठीक है रुकिए। भगवान को भक्त मोदी जवाब सुन लेते हैं। सही है कि गलत? जवाब सुन लेते हैं। कभी परिभाषाएं इस तरह होती है, जब भगवान भक्त के अनुकूल हो जाते हैं तो आपको यह याद होगा, दुर्वासा का घटना याद होगा कि दुर्वासा के ऊपर यद्यपि बहुत बड़े भक्त थे, संयमी थे, लेकिन अम्बरीशी के यहाँ जब घटना घटी तो भगवान भी कह दिए कि नहीं, ये हमारा सब कुछ उनके लिए है। इसलिए मोदी नहीं, भगवान तो बड़े हैं, भगवान बड़े हैं, लेकिन कार्य करने के लिए भगवान अलग नहीं है। ये इनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन होता है। ये जो राम को नहीं मानेंगे, जो रामलला को इनकार करेंगे, वो भगवान की बात करेंगे। शर्म इनको आनी चाहिए। वहाँ पे देश से तमाम जगहों Only for word of time, I'm thanking all our panelists for
for joining us. This was a live coverage from the Assi Ghat. As we thank all of them, do remember June the 1st is when Banaras is voting. And if you're voting in the city, please step out and cast your ballot. Parvati Fateh.